somebody else that their name is so and so. So they don't have even their own identity. They don't have any dignity. The moment they go to a police station or to a district office or to getting their land registered, they don't have any dignity. They are not treated with any dignity. 3, they do not have any right to be productive because they get, their rights are given as doles. Whatever welfare schemes which are introduced, they are given as doles, not as rights. And when they are given as doles, then leakage takes place because it is not their right, it's presented as if it is a dole. And then you start talking of eliminating these doles. So they are deprived of even the basic rights. So basic question is that we must recognize that citizens are not colonial citizens, they are not the colonial subjects. They are the citizens of this country. They must have right to identity, dignity and productivity. These are the 3 basic rights must be granted to them. And then only there will be these kind of acts will have a relevance. These kind of bills will become effective. I think we just heard Dr. Pramod Kumar, but before we discuss what he said, people must have right to dignity and some other rights. Mr. Dharmveer, tell me now, both Punjab and Haryana, दोनों ने Governance Reforms Commission बनाए हैं. पंजाब के डॉक्टर प्रमोद कुमार इज हेडिंग इट एंड हरियाणा में भी ऐसा ही कमीशन है. इन कमीशंस का कोई फायदा होगा, कोई सिस्टम? The experience with the Reforms Commission in India shows that they have not served the purpose. Whether it is the Administrative Reforms Commission of India, first or second, or the state commissions wherever they have been set up, they have not yielded much result. Right. Mr. Gurdeep Singh, tell me, in Bihar they have also enacted another law called the Special Courts Act. Now, whereby the government can confiscate the property of those who are accused. Do you think we need a law like that in the country? Let me put it this way. You see, Mr. Nitish Kumar in his speeches in the elections also said, whoever does bad to the public and is proved to have done bad is corrupt, will take over the property and use it for public good, whether it is schools that he said and it जितनी इमारतें हैं दोषी लोगों की उनको लेके उनको स्कूल बना देंगे. Sounds extremely good. Eventually all these laws and the intent behind it is public empowerment. Right to service is public empowerment. If today not, but tomorrow if somebody is, don't we have laws enough under various sections of ID or various sections of income tax or Foreign Exchange Management Act to take over the property and the assets of the people? We already have those existing laws. Maybe the state doesn't have those powers and it has assumed powers to themselves, legislative powers. But it's a good idea eventually. Good idea, but it has run into all kinds of legal issues. I know, Mr. Mulkir, that you've done a lot of work on the anti-corruption front. I think you were even prosecuted in one of the Tehelka case. But tell me, is this law tenable, legally tenable? I think this would really run into rough weather as far as judicial scrutiny is concerned. As far as क्योंकि एक accused की संपत्ति ले लेना, उसको जब्त कर लेना, टेनेबल नहीं है, मुनासिब नहीं है जब तक कि वो किसी कोर्ट से कन्विक्ट ना हो जाए. अगर वो दोष मुक्त हो गया तो फिर प्रॉपर्टी का क्या होगा इन द मीन टाइम. और दिस कुड हैव ड्रास्टिक रेपरकशंस. इसके बहुत भयानक परिणाम निकल सकते हैं कि अगर ये पॉलिटिसाइजेशन हो गया इसका तो किसी के खिलाफ भी एक अपना चार्ज लगाया और उसकी संपत्ति जब्त कर ली, like the TADA Act. So therefore ये tenable नहीं है. I don't think so this is tenable. Mr. चतरथ, कानून की दृष्टि में आपको भी लगता है कि जो बिहार का लॉ है Special Courts Act, ये tenable? I have an impression that it is sub judice, ये वाला issue जो है. Otherwise prima facie I feel कि it will not be tenable for the simple reason जब तक या तो Supreme Court तक upheld ना हो और उससे पहले Indian laws में कई जगह वो तब तक वो divert कर देता है. Just like आज की we read the newspapers. 1 year के बाद जो रेट पड़ रही है तब तक तो सब कुछ डाइवर्सिफाई हो गया. जब वो हुआ तो उसके बाद उसकी क्या चेक्स एंड बैलेंसेस हैं? वो अटैच हो सकती है. यू नो इट कैन बी अटैच्ड. अटैच करना लीगली मुनासिब है. स्कूल बनाना और सब कुछ करना तब तक तो अगर सपोजिंग once he gets acquitted. But I think this is more for public consumption rather than anything else. लेकिन बिहार में शायद एक्ट इसलिए बना क्योंकि वहाँ पे क्रिमिनल एलिमेंट्स और करप्ट एलिमेंट्स में बहुत ज़्यादा
समझौता था, वातावरण डिफरेंट, वातावरण। लेकिन मैं ये समझता हूं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो केसेस बहुत सारे फेल होते हैं और इनको फास्ट ट्रैक पे चलाना आवश्यक है। अभी जो कई केसेस सामने आ रहे हैं या आ चुके हैं, 5-5 साल 6-6 साल लगते हैं ट्रायल में, तो इनको फास्ट ट्रैक पे चलाने की आवश्यकता है ताकि जो आदमी पकड़ा जाए, जिसके खिलाफ कोई भी केस दर्ज हो, उसका निपटान जितना जल्दी होगा उतना इम्पैक्ट अच्छा होगा। ये जो राइट टू सर्विस बिल है, उसके तहत अगर कोई ऑफिसर ही डज नॉट डिलीवर एंड ऑन टाइम, ही कैन इवन बी पनिश्ड। अभी कोई सिस्टम प्रोविजंस नहीं है लॉ में कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स के लिए आप पनिश हो सको? इस समय कोई इफेक्टिव सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज और कहना चाहता हूँ, आई बिलीव सेंश्योर एंड वार्निंग चल पड़ती है, लेकिन वो कितने लोग, दैट्स नॉट इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक और एम्पावरमेंट, लेकिन कितने लोगों को आप करेंगे, क्योंकि इसमें कितने डिलेज हो रही, इतने लोग जैसे लाइसेंस बन रहे हैं या बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट देने, कास्ट सर्टिफिकेट देने, लाखों में लोग आते हैं। तो नहीं, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है, फॉर्चुनेटली इस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए आप बहुत चीजों को हैसन कर सकते हैं एंड स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपने पासपोर्ट के बारे में आपने जिक्र किया, अब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आप सारी चीजें दे सकते हैं, इनकम टैक्स में भी आप ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं। तो इससे लोगों को फायदा हुआ है। मैं तो समझता हूं कि बहुत राज्यों में, बहुत जगह दफ्तरों में यह है कि एप्लीकेशन भी नहीं मिलती। एप्लीकेशन अगर वेबसाइट पे डाल दी जाए, जो लोग डाउनलोड करें, तो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुत चीजों को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, ट्रैक डाउन कर सकते हैं। और नेशनल ई गवर्नेंस मिशन जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 10,000 करोड़, उसका मकसद भी है। हालांकि ई गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करने में भी कल्चरल इश्यूज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं एट द ऑपरेटिव लेवल, तो उनको भी दूर करने की आवश्यकता है। ये हमें अप्रिशिएट करना होगा कि ऑल दीज आर रिपीटेटिव सर्विसेज बेस्ड ऑन कोडिफाइड लॉज एंड रेगुलेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स। But I thought even Punjab and Haryana and some of these governments are also taking certain steps. जैसे पंजाब में जितने एफिडेविट्स हल्फनामे थे, अब कई चीजों के लिए आपको हल्फनामा नहीं देने की जरूरत है। So I think some steps are. They are, in fact, we have also done away with in many cases. जी। सेल्फ डिक्लेरेशन उन्होंने हम लोगों ने प्रिस्क्राइब किया था। exactly. और बहुत इसके बारे में डिस्कशन चलता रहता है, और मैं सोचता हूं कि टाइम इज नॉट फार व्हेन सेल्फ डिक्लेरेशन विल बिकम the way of life rather than taking too many efforts. Absolutely. Mr. Chhatrat, बिहार एक लोकपाल अभी सेटअप करने वाला है जिसमें 3 tier जो पंचायती सिस्टम है, that will be accountable to the लोकपाल। आपको लगता है कि this will help check corruption? अल्टीमेटली जैसे पंजाब में भी लोकपाल है और हरियाणा में भी है, अगर हम पिछले ट्रेंड्स देखें तो अभी तक किसी का भी हुआ नहीं। जिनका कुछ हुआ अल्टीमेटली आ गया कि इट इज अ रिकमेंडेटरी अथॉरिटी। अब कुछ टीचर्स की सिलेक्शन पे उन्होंने किए एंड देन अल्टीमेटली गवर्नर के पास गया, कंसेंट हुआ, वो स्टे हो गया। नाउ इट इज मोर रिक्वायर्ड लाइक इट, जो इनकी या तो टीरिंग प्रॉब्लम जो इनसे सफर हुई उनको थोड़ा रिमूव कर दिया जाए। जैसे अब ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसकी भी एक रिकमेंडेटरी अथॉरिटी है। अल्टीमेटली अगर कोई भी अथॉरिटी बनाई जाएगी उसका इट हैज टू बी गिवन मोर टीथ। आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, बहुत सिंपल एक्ट है, बहुत लिमिटेड से सेक्शंस हैं, बट इट इज सेल्फ कोडिफाइड इन सच ए वे। अब जैसे लॉ में कहते हैं नॉट विद स्टैंडिंग, इट इज वन ऑफ द रेयर एक्ट जिसमें नॉट विद स्टैंडिंग और कोई एक्सेप्शनल क्लॉजेस नहीं है और हर चीज टाइम बाउंड है। एंड पीपल आर दैट इज डूइंग वंडर्स। आप तकरीबन मेरे ख्याल से एनी देयर इज नो डे जिसमें न्यूज़पेपर्स ले लो या टीवी ले लो जहां पर राइट टू इन्फॉर्मेशन के बेस पे लिटिगेशन ना चल रही हो और उसका फार रीचिंग इम्पैक्ट है। इट इज सेड कि भाई वन ऑफ द सुदीप जी, व्हाट इज क्या करने की जरूरत है भ्रष्टाचार को चेक करने के लिए? He was mentioning Right to Information Act. It's a terrific act. जी. Just like we brought the consumer courts and public could challenge any outside service provider for the services. But we kept the state out of the consumer courts. It's about time we bring the state to accountability. Because state carries country's largest sense of resources for distribution, both in services as well as in goods. And therefore it's time we question the state whether through right to service. But don't you think the people need to demand their rights, as Dr. Pramod Kumar was also saying? I think that's not happening. For example, now in Great Britain they introduced the Citizens Charter. Now we also have a system of the Citizens Charter, but I don't think it is effective. Right.
Now that means the public today is not through Yuv Satta or any level of Satta, means every age. Public today is, number one, not empowered enough with the knowledge that it can challenge. Two, we have a history of 300 years of, legacy of our being ruled, and we still carry somewhere in our system that we look forward to MyBop system of the government. Absolutely. To provide. Mr. Mohan Gill, what needs to be done? लोकपाल को कैसे strengthen करना चाहिए? क्या उनको ज़्यादा powers मिलनी चाहिए? I feel कि किसी भी institution को effective बनाने के लिए first of all it has to be pointed, बड़ा sharp, crisp और short होना चाहिए, and it should contain punitive actions, sections. Why? क्योंकि हमने ये देखा गया है कि bureaucrats are the people are really fed up with some level of bureaucracy in some form of the other. उसके लिए जब तक आप ऐसा सेक्शन नहीं डालेंगे जी, वो जो आप पहले बात चल रही थी विल की, वो विल तभी जागेगी जब कोई एक सेक्शन होगा जिसको बताएंगे कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ ये होगा. आई थिंक दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज व्हाई to the institutions like the Lokpal. Rather than exactly. recommendatory authority, it has to have powers to do. we don't Yes. need any commissions or anything. We need Mr. Dharmveer, even Maybe Madhya some Pradesh plan. government ने भी कुछ steps लिए थे, but I think they introduced something called the Public Services Guarantee Bill some months ago. लेकिन इतना कामयाब नहीं हुआ. आपको लगता है कि वो वहां पे कामयाब नहीं हुआ, बिहार में कामयाब हो जाएगा? देखिए, एज आई वाज सेइंग कि द लॉ इज हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड एंड विद व्हाट सीरियसनेस. तो बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हुए. अगर ये सरल बने और बिल्कुल पिन पॉइंटेड हो, लोगों में इसकी जागरूकता हो, तो ये अगर सरकार ना भी इम्प्लीमेंट करना चाहे तो जनता कोर्ट में जाके इम्प्लीमेंट करवा सकती है. आज के दिन बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो कि जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में एनजीओज भी बने हुए हैं और बहुत इफेक्टिव काम कर रहे हैं, जनता जानती है. तो मैं समझता हूँ कि कानून का फायदा तो होगा. एक साल कोई टाइम फ्रेम इतना ज़्यादा नहीं है, ये पिछले साल ही बिल आया है जी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ. मध्य प्रदेश में हाँ, एक साल पहले आया सॉरी, है. ये इसी साल आया है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ. तो वी विल हैव टू वेट. राइट. धर्मवीर जी, समय होने वाला है, लेकिन मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा कि इस समय ऐसे लग रहा है कि समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो भ्रष्टाचार है. आपकी हरियाणा में इतनी काफी आपका अनुभव है, आपके अनुभव के आप क्या कहेंगे उसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि ये बला कैसे, इससे हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं? देखिए, 3-4 विंग हैं जो कि कहे जा सकते हैं किसी भी राज्य को चलाने में, जिनकी काफ़ी भागीदारी होती है. एक तो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिशियंस हैं, जुडिशरी है, फिर ब्यूरोक्रेसी है और फिर जनता है. तो ये चारों जो ग्रुप्स हैं, दे विल हैव टू प्ले देयर रोल. You see, the public has to also be awakened and they should say, we will not give you money. Anybody who is demanding, we want our rights to be So to that extent, the right to Yes. service bill, I think definitely will help. I think It does, it would help. But public awakening is required through the media through the media. राइट. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिस्कशन में हिस्सा लिया. कई राज्यों ने जनता को मूल सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में कदम उठाए हैं, लेकिन कामयाब कोई भी नहीं हो सका है. ये इसलिए क्योंकि राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति की हमेशा कमी रही है. जीत से उत्साहित बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सेवा के अधिकार देने का वादा किया है, जो बाकी राज्यों में भी जिम्मेदार सरकारी तंत्र के नए दौर की शुरुआत कर सकता है. इसके साथ ही हम आज का डे एंड नाइट प्राइम डिबेट यहीं खत्म करते हैं. कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ. तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल.